Hello everyone. Today in this chapter we will study about Tarot's Reward, which is chapter number 3 of English literature. Before moving towards the depth of the chapter or before start reading the chapter, here are some word meaning that I would like to tell about it, that they are chopped means cut into pieces, little money, less money, whistle through, pass through with a whistling sound, jumped out his bed means wake up, made his way to means went to, rushing water means the flowing water, shake, a popular Japanese drink, delicious, that means the very tasty, cupped a little in his hand means took some water or any liquid in his hand. Now here some that is muttering, speaking unclearly, sent for means called, encourage means the inspire, and intended means the plan. Now we will go through the chapter now. That means we are going to read the summary of this chapter. So before moving towards here are some introduction of this chapter. Is that what is this chapter about? This chapter is about a thoughtful and a loving son who works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. कहता ये है कि ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करता है और फिर उसे मतलब मेहनत करने के साथ साथ उसे किसी न किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो सोचा न था उस तरीके से हेल्प इसको मिलती है. Chapter is about a young woodcutter named Taro lived with his old parents on the lovely hillside. Chapter जो है वह एक टैरो नाम के लड़के की है जो हिल साइड पे रहता था. His small earning from his work made him sad because he wanted to make his parents' life better. One day it was cold and wished to had a cup of shake. होता ये है कि हिल साइड पे रह रहा होता है. उसकी एक छोटी सी अर्निंग थी, बहुत छोटा कमाई करता था, बहुत कम कमाता था, जिसकी वजह से वह ज्यादा दुखी रहता था क्योंकि वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता. एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ठंडी हवा चल रही होती है जिसकी वजह से द एटमॉस्फेयर बिकम कोल्डर एंड हिज पेरेंट्स विश टू have a cup of shake, warm shake. This made Taro sadder than ever because for the shake it was very expensive, and next morning and for that he got up earlier than ever in the next morning and made for forest and kept on chopping the wood for the long time, even after his mouth was थर्स्टी एंड ड्राई. कहता है कि यह सुनकर कि उसके पिता को एक गर्म शेक चाहिए, ही बिकम सैड, वह दुखी हो गया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने माता पिता को एक कप शेक दिला सके. इसके लिए वह अगली सुबह मेहनत करने की सोची और फिर अगली सुबह मतलब जल्दी उठा और जंगल की तरफ चला गया. कंटिन्यूअली प्यासा और भूखा रहने के बावजूद वो लगातार लकड़ियां काटता रहा और यह सोचता रहा कि जितना गर्म वो अभी है काश उसके पिता भी उतने गर्म रहते. सडनली होता क्या है कि a sound of water falling somewhere made Taro stop his work. अचानक से उसे बहती हुई पानी का एक आवाज सुनाई देता है और वह काम करना छोड़ देता है. काम करने के छोड़ने का कारण सबसे बड़ा ये था कि he had never heard or seen the rushing water nearby that part of the forest, and that is why he ran in the direction of the sound. To his surprise, it was a beautiful waterfall, and it was not water but the shake. कहता है कि उस पार्ट में जब वो गया तो उसे पता चला कि वहां पे एक बहुत ही सुंदर सा झरना है,
लेकिन वह पानी का नहीं, सेक का झरना था उसके लिए। He filled his pitcher and hurried home. Pitcher is the type of bag where water is being carried. तो उसमें वो पानी, वो सेक भरता है और घर की ओर चला जाता है। The old man was delighted. He took just one swallow and he stopped shivering and began to dance. It shows his happiness. That day, a neighbor visited Taro's house, who was offered shake. Taro told her the whole story of the magic waterfall. यहाँ पे क्या होता है कि उस वृद्ध व्यक्ति को टैरो के पापा जब उसके शेक को पीते हैं तो वह खुश हो जाते हैं, और साथ ही साथ इतने खुश होते हैं कि वह नाचने लगते हैं, और उनकी पूरी जो ठंड लगने की वजह से कपकपाहट सी शरीर में वो बंद हो जाती है। इसके अलावा उसी शाम को टैरो के यहाँ एक कोई गेस्ट आता है। विलेजर कम इनटू हिज एट हिज हाउस हु वाज ऑफर्ड अ शेक, जिसे वो शेक दिया जाता है। एंड टैरो इनोसेंटली, ईमानदारी से वो पूरे का पूरा कहानी, जो वाटरफॉल की कहानी थी, वह पूरी की पूरी कहानी उसे बता देता है। Soon after the story was spread all over the village. The villager come to Taro's house and within an half an hour the pitcher was empty. होता क्या है कि आधे घंटे के अंदर वह पूरा का पूरा पिक्चर खाली हो जाता है, क्योंकि लगातार उसके घर पे एक एक करके वो गांव वाले पहुंच रहे होते हैं, और इस दौरान उसे वो सारी मतलब उन सारे लोगों को वो जो ऑफरिंग है, that offering of shake, वह चालू रहती है। Next morning, much before Taro, all villagers had reached the magic waterfall. जैसा कहानी में पहले बताया जा चुका है कि टैरो ने सबको वो कहानी बताई थी वाटरफॉल की, जिसकी वजह से टैरो के उठने से पहले every one of the village went near that waterfall. However, they became angry when they tasted the liquid. जो कुछ भी हुआ, कहते हैं कि मतलब झरने के पानी को या लिक्विड को टेस्ट करने के बाद वे टैरो के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, because it wasn't a shake but only the cold water. अब बाकी विलेजर्स के लिए जैसे ही वो टेस्ट करते हैं लिक्विड, तो वो सिर्फ ठंडा पानी निकल जाता है, बाकी कुछ नहीं। Just opposite that villager, it was a warm, tasty, delicious shake for the Taro, not the cold water. ठीक अपोजिट होता है टैरो और विलेजर्स के साथ। So they wanted to drown Taro, इसलिए वो टैरो को मारना चाहते थे। Taro hid himself in the forest. When they gone, he tested the liquid himself. अब यहाँ पे क्या होता है कि टैरो छिप जाता है जंगल में, ये सुनकर कि अब गांव वाले बहुत गुस्से हैं और उसे डुबोना चाहते हैं, तो वो जंगल में छुप जाता है। और जब सारे गांव वाले चले जाते हैं, तो ही केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस एंड गो नियर द वाटरफॉल. He again tested the liquid of the waterfall, which becomes a shake, not the cold water for him. It was fine shake again. It was clear that the magic waterfall gave shake only to the Taro, as he was a thoughtful son. ऐसा इसलिए होता है कि सिर्फ टैरो को ही वो शेक मिलता है, बिकॉज दैट मैजिक वाटरफॉल गेव शेक ओनली टू द टैरो. सिर्फ वो टैरो को ही शेक देता था, बाकी को नहीं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि वह एक थॉटफुल सन था. द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड द मैजिक वाटरफॉल reached to the emperor, and he rewarded him with 20 gold coins and named the most beautiful fountain after him. अब इसके बाद चूंकि वह जापान का हिल साइड था और वह जापान देश का निवासी था, ही वॉज जापानी,
that is why the story का जो एंड है उसमें लिखा हुआ है, आपके जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि राजा के पास जापान जो टैरो है, टैरो की विश्वसनीयता, उसका थॉटफुलनेस, द ऑनेस्टी of the tarot reached to the emperor of the Japan, as well as the magic of waterfall. यह भी राजा के पास पहुंचता है, इसकी कहानियां, जिसकी वजह से राजा ने टैरो को 20 सोने के सिक्के एज अ रिवार्ड उसको दिए हैं। और साथ ही साथ जो जापान की सबसे खूबसूरत फाउंटेन था, उस फाउंटेन का नाम टैरो रख दिया। द किंग डिड इट टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। जापान के राजा ने ऐसा इसलिए किया, राजा टैरो का रिवार्ड इसलिए मिला क्योंकि वह सिर्फ सारे बच्चों को इस बात से मतलब इनकरेज करना चाहता था कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनके ऑर्डर को मानना चाहिए, और साथ ही साथ हमें उनके प्रति ऑनर रहना चाहिए, उनके प्रति हमें श्रद्धा मतलब उदार होना चाहिए, उनके सारी इच्छाओं को पूरे करने में हमें जहां तक हो सके वहां तक अपने आप को अपने काम करना चाहिए। तो द होल स्टोरी इज अबाउट द obedience, to being a obedient boy, to or honor the guardian, honor the parents, as well as to obey the parents, or to become a thoughtful son. So this was the whole story that we have to learn, and I would like to tell everyone to be obedient to his parents and be what you want to be. And this is what we have to learn in this whole chapter. Till thank you for watching this video. Thank you and have a nice day. Be at home, be safe.